Good morning, class. In the previous class of your mathematics, we were solving the chapter 2, and in which we have solved the exercise 2.1 and we were solving the exercise 2.2. So we have learned about the relation between the coefficients and the zeros of any polynomial, in which we have learned about the linear polynomial, which was ax plus b, and later was the quadratic polynomial, that was ax square plus bx plus c, where अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि जैसे कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, तो यदि मैं x की जगह अल्फा रखूंगा तो उसकी पूरी वैल्यू जीरो आएगी, एंड यदि x की जगह बीटा रखूंगा तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मींस दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ वी आल्सो लर्न अबाउट द रिलेशन बिटवीन द polynomials and zeros and the coefficients of polynomial. Here coefficients are a, b and c, so we have learned about the relation about them, that is alpha plus beta is equal to minus of b upon a, and alpha into beta is equal to c upon a. So this relation we have learned, and also we have solved one example related to the same question. Now we are going to solve the numericals of your exercise 2.2. It is very important. So our first numerical is, it is asking there is a polynomial. Second question it is first, 4s square minus 4s plus 1 is, आपको क्या करना है, you have to calculate the zeros of the polynomial, and also we have to find the relation between the coefficients and the zeros. Okay guys, so what first of all we have to factorize it to get the zeros of the polynomial. So that is, if I am splitting the middle term, we will calculate the zeros of the polynomial. So 4 into 1 4, and I can split it like 4s square minus 2s plus 1. ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि -2 प्लस -2 -4 हो जाएगा, तो इसका मतलब सब मेरा बराबर आ रहा है। -2 इंटू -2 करूंगा तो 4 आता है, एंड 4 इंटू 1 भी 4 होता है, तो ये करेक्ट पैटर्न है। सो इन दिस, इस दोनों इक्वेशन में से 2s में कॉमन ले लूं तो इनसाइड में क्या आएगा, 2s minus 1, एंड यहां से यदि -1 कॉमन ले लूं तो इनसाइड में क्या आ जाएगा, 2s minus 1। तो पहला रूल क्या बोलता है कि ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉमन लूंगा। सो आई विल टेक इट एज कॉमन 2s minus 1। तो अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूं तो इनसाइड में क्या बन जाएगा, 2s minus 1, ठीक है। तो अगर ये 0 के बराबर है तो इट मींस या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो यदि मैं दोनों, क्योंकि दोनों में देखा जाए तो सेम है, तो दोनों जीरोस यानी अल्फा की जो वैल्यू आएगी, जैसे 2s minus 1 इज इक्वल टू 0 कंसीडर करूंगा, तो s इज इक्वल टू ये 1 उधर ट्रांसफर होकर 2 डिवीजन में आ जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 and beta is also equal to 1/2. So I have calculated the zeros of the polynomial by splitting the middle term of the given polynomial. Okay. Now what I have to do, I have to find the relation like similar way of the polynomial. So here alpha is known, beta is known, and the value of a is 4, b is -4. ठीक है, आपको अगर माइनस में दिया है तो माइनस को इंक्लूड करना है, एंड c is equal to 1. Now अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 अगर ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। ऐड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ -4, क्योंकि बी की वैल्यू -4 है, अपॉन 4, तो माइनस माइनस प्लस, so it is 4 upon 4 and it becomes 1. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए has a relation verified. Similarly alpha into beta यानी 1/2 into 1/2 is equal to 1/4, and c upon a, it means हमको c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, यानी ये भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। So we are solving correctly and we have find the zeros of the polynomial as well as we have compared the coefficients of the polynomial as well as the zeros of the polynomial. Similarly, one more question, question number 4. Let us solve that. The question number 4, it is given 4u square plus 8u. You have to find the zeros of the polynomial as well as you have to compare also. So if I take the 4u common from both the sides, it comes inside u plus 2.
अंदर क्या आएगा, u प्लस 2 आएगा, क्योंकि मैं दोनों में से 4u कॉमन ले रहा हूँ। तो ये अगर ये 0 के बराबर हुआ, इट मीन्स आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है। तो यहाँ करूंगा तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0, एंड इफ हियर देन u की वैल्यू क्या आएगी, -2। इट मीन्स अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2, यानी मेरा zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गया। नाउ आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। यानी यदि मैं इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू जो आएगी वो 4 है, b की वैल्यू 8 है एंड c की वैल्यू 0 है, क्योंकि c नहीं दिया गया है। c क्या है, c विदाउट एनी वेरिएबल है, तो यहाँ पे जब नहीं है तो हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यदि मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो 0 - 2 दैट इज -2 आएगा, और यहाँ पे -b अपॉन a करूं तो b की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस तो रहेगा ही अपॉन 4, तो ये इसको कट करेगा तो 2, तो यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यानी यहाँ पे मेरा रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है। सिमिलरली फॉर अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो यदि मैं 0 इंटू -2 करूं दैट इज c अपॉन a, तो इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो ये मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, ये डिवीजन भी 0 आएगा, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ ही हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t² -15। तो इसमें आपको सेम वही प्रोसेस करना है। वी नो दैट a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो t² -15 को क्या लिख सकता हूं, t प्लस √15 एंड t माइनस √15 कंसिडर कर सकता हूं। अगर ये 0 के बराबर है, इट मींस या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो आई कैन राइट इट एज t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। So t is equal to -√15 and here t is equal to √15। तो अल्फा की वैल्यू ये है एंड ये बीटा की वैल्यू आ गई। Now what I have to do? I have to compare this equation with the coefficient. So a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे b नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसको कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो x² है मेरा जो कि t² है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x यहाँ है ही नहीं, x यहाँ है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू क्या है -15, c की वैल्यू -15, क्योंकि माइनस इंक्लूड मैं करूंगा। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अल्फा प्लस बीटा जो कि -b अपॉन a है कंपेयर करने के लिए, तो अल्फा की वैल्यू -15 √15, बीटा की वैल्यू √15, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, तो √15 -√15 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा है -√15, बीटा है √15, तो c भी कितना है -50 एंड a की वैल्यू 1, तो माइनस प्लस माइनस √15 इंटू √15 50, 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो √15 हैंड रिलेशन वेरीफाइड। तो आपको ये एग्जाम में ऐसे ही करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि आपको जीरोस फाइंड करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। Now let's move to the question number 2 of the exercise 2.2, that is the last question of your exercise. Here you are given the zeros and you have to find the quadratic equation. आपको जीरोस दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। यानी अल्फा की वैल्यू आपको 1/4 दी गई है, बीटा की वैल्यू आपको -1 दिया गया है। What you have to do? You have to find the value of, sorry, you have to form the quadratic equation. Okay. So अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b अपॉन a के बराबर होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो
सी अपॉन ए के बराबर होता है। एंड मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यदि मैं अल्फा प्लस बीटा पहले करूं तो जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 प्लस -1। तो एलसीएम लूंगा तो -4 हो जाएगा एंड 1 - 4 -3/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कैंसिल हो गया। सो ऑन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आई कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक b इज इक्वल टू 3a/4। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू 3a/4। ये मेरा पहला है। क्लियर? आपको बस क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करके इसके साथ कंपेयर कर देना है। सिमिलरली फॉर अल्फा इंटू बीटा लाइक 1/4 इंटू -1 इज इक्वल टू c अपॉन a, या तो -1/4 c अपॉन a आएगा, या c की जगह क्या लिख सकता हूँ, -a/4। ठीक है। b की जगह क्या आ गया, 3a/4, c की जगह क्या आ गया, -a/4। बस आपको क्या करना है, इस b की जगह 3a/4 लिखना है, इस c की जगह -a/4 वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है। जीरोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। यू हैव टू कंपेयर द इक्वेशंस। ओके, यू हैव टू कंपेयर कि आप अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके आपने सॉल्व किया, -b अपॉन a से कंपेयर कर दिया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा आपको करना है एंड आप उसको क्या करोगे, -1/4 से कंपेयर कर दोगे। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन दैट इक्वेशन वी गेट इट x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखूंगा, 3a/4 प्लस c की जगह -a/4। ठीक है। तो यदि मैं एलसीएम लूं तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4ax स्क्वायर प्लस 3ax एंड प्लस माइनस माइनस, तो -a/4। और इसको अगर मैं 0 के साथ कंपेयर कर दूं, ठीक है, सो ऊपर वाले में से सब में देखिए a, तो a कॉमन, तो इनसाइड में क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0/4। तो 4 यहाँ इसके मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली a को यहाँ डिवाइड करा दूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, ये मेरा इक्वेशन रिमेनिंग रहेगा। यानी फाइनल आंसर इज, my final answer is 4x square plus 3x minus 1. Hope this is clear to all of you. ठीक है। Now moving to the question number 3rd of your second. थर्ड में आपको 0√5 प्रोवाइड किया हुआ है। इट मीन्स अल्फा इज 0 एंड बीटा इज √5। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह बनाना है। ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो 0 प्लस √2 -b/a किसके बराबर आ जाएगा, 0 प्लस √5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। सो -b/a इज इक्वल टू √5 और b इज इक्वल टू √5a। ये a को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, साथ ही साथ ये -b इधर चला गया। ठीक है। तो ये b का एक पहला रिलेशन हो। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू √5 इज इक्वल टू c/a। ये 0 आ गया तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 0, a यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ वो भी 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड c इन दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, b और c की वैल्यू उस इक्वेशन में प्लेस करनी है। सो आई कैन राइट इट लाइक ax स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या थी, -√5a एंड c की वैल्यू 0। सो ax स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -√5ax। ठीक है, 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इसको 0 से कंपेयर कर दूं तो a को यदि कॉमन ले लूं, x स्क्वायर -√5 है इज इक्वल टू 0, तो a यहां जाकर के कंप्लीट डिवाइजन में 0 हो जाएगा। सो a अब लिखने की जरूरत नहीं है। सो
I can write my final answer as x square minus root over 5x. ये मेरा required equation है. So here your exercise 2.2 is over. You can now move to the question exercise 2.3. But before moving to exercise 2.3, there is an additional little point is given that for any cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते थे अल्फा एंड बीटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा. ये 3 जीरोस होते हैं, यानी इस वैल्यू के लिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरोस हो जाती है. सो देयर इज अ रिलेशन गिवन कि इसमें कोफिशिएंट्स एंड इसका क्या रिलेशन रहता है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो रहता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर रहता है. अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. जैसे हमने उसमें रिलेशन बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल स्टडी किया था, सेम वही है. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए रहता है. ठीक है, बट ये एग्जामिनेशन में नहीं आता है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बुक में दिया गया है. इसका एक एग्जांपल भी प्रोवाइड किया हुआ है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड in next class we will try to solve that example related to our this question, and also we will move to our exercise 2.3 where the which is dividing polynomial by polynomial, जो आपने लास्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ था polynomials में, dividing polynomial by polynomial. ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा था ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 है. एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास में शायद ये चैप्टर ओवर भी हो जाए या एक क्लास और चल जाए. एंड देन वी विल स्टार्ट अवर अनदर चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो क्लास इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली रिगार्डिंग द डाउट, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर ऑफ दिस.